लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर योर एग्जीबिशन। एग्जीबिशन में रजिस्ट्रेशन कराने का लास्ट डेट है। इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड, जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज, सेकेंडरी में तो whatever assessment marks will be given, they'll give on the basis of your this thing participation in exhibition. Okay, now we have already finished this much of lesson till page number 49, I think. Ma'am, 49. So we'll discuss this much. So I told you, did I tell anyone to present something? किसी को कुछ दिया था काम जो आज उसको explain करना था? किसको दिया था नाम? I forgot. I told someone to like explain contraction and expansion. किसको बोला था? I forgot name. Who's going to describe this thing? Arush, करोगे explain? Sachi? Yes, ma'am. Contraction and expansion. Who's going to explain? एकदम शॉर्ट में फटाफट एक एग्जांपल के साथ। आरुष, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। अक्षय ही हैंड रेज करेगी, दिव्यज्योत करेगी, बाकी के समवन एल्स। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन तो बताओ। सांची, टर्न ऑन योर वीडियो। मैम क्या आपने बताया था वो समझाना है क्या? नहीं, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और एक्सपेंशन क्या होता है, बस इतना ही बताना है। उसकी डेफिनेशन तो बहुत छोटी है। हाँ, छोटी सी है, डेफिनेशन भी मत बताओ, उसकी एक्सप्लेनेशन। ओके अक्षय, टेल। कॉन्ट्रैक्शन मींस? Contraction means that thing can be smaller in size, and expansion is that or phenomena. See, an activity or process or phenomena in which the size of an object contracts or decreases or becomes small is called contraction, and the phenomena or event or activity or process in which the size of object becomes larger or increases is called expansion. Okay, now come to the next page. Like we did that day with कैंडल के साथ एक डिस्कशन किया था। कैंडल को ब्लो करना शेयर नहीं हो रहा। Now come to page number. Can you see? Can you see the textbook? no ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. कंप्यूटर में बट कुछ शेयरिंग आ रहा है। No, ma'am. Ma'am, आप Yes, can ma'am. see the See it now? textbook. Ma'am, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now see, like that day we did with we did with कैंडल। कैंडल के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। कैंडल को अगर मैं डायरेक्टली लिट करूंगी तो it is not a reversible change, this one. Okay, and if I keep it in a pan and I lit it, make it warm, heat it, then it is reversible change. Similarly, जैसे तुम्हारे घर में होता है, when you do, so what you do, repeat the same activity 7 with an incense stick. इसको अंडरलाइन कर दो। incense stick का मतलब अगरबत्ती। When you lit an अगरबत्ती or incense stick, what happens? क्या होता है? Is it a reversible change? क्या वो reversible change है? No, ma'am. No, it is not a reversible change. What happens when you burn or lit a incense stick? Incense stick को जब lit करते हैं, wait till it burns away completely. उसको तब तक जलाओ जब तक वो पूरा खत्म नहीं हो जाए। What are the changes that occur in an incense stick? Incense stick को जलाने पर क्या changes होते हैं? The stick burns to produce some new material. वो जो incense stick burn हुआ, वो burn होने पर एक नया material, एक ash बनता है। So it's a chemical change. And heat भी release होती है। वो कौन सा reaction है heat release होना? Chemical change. That day I told you chemical reaction.
Chemical हीट रिलीज reaction. होना कौन सा वाला चेंज बताए थे, दो रिएक्शन बताए थे दैट बिगिंस विद Irreversible. ई से स्टार्ट होते हैं। नहीं, ई यस मैम, वो ऑक्साइड की प्रॉपर्टी ले लेता है। when something is burnt, I gave you example of keeping a spoon of glucose on your tongue वाला example दिया था, याद है? तो मैंने Yes, बताया था ma'am. heat Yes, release ma'am. होती है, heat से तो कौन सा? Yes, ma'am. तो Ma'am. when heat is released, it is what reaction? कृति को भी याद नहीं, कृति रे? What was that reaction? कृति, इशिता, Ma'am, expand. and I told you Expand. ऐसा कुछ बताया था? That's why I tell you all कि पेंसिल लेकर बैठते हो तो put a star and write in textbook. अक्षया ने लिख रखा है कहीं पर, इसलिए अक्षया saw that and told me ना, इसलिए लिखना है, स्टार लगा के ऊपर लिख देना है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग दे गिव यू क्वेश्चन पेपर, अगर तुमने उसमें ऐसे सब वर्ड्स आएंगे तब कुछ समझ में नहीं आएगा। सो व्हेन वी लिट अ इंसेंस स्टिक को जब लिट करते हैं, जलाते हैं, तो हमको अगर कुछ दिखता भी नहीं है बट वी गेट अ प्लेजेंट स्मेल, एक अच्छी सी स्मेल आती है, तो पता चल जाता है कि उसमें से हीट रिलीज हो रही है ना, स्मोक आ रहा है बाहर, है ना? तो दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल चेंज है ना? एंड अ न्यू, अब याद रखना ये वाला वर्ड नाउ। सो व्हाट हैपेंस, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? ये वाला चेंज रिवर्स हो सकता है क्या? इज इट अ रिवर्सिबल चेंज? No, ma'am. Yes or no? No, right here no. And No, what about the ma'am. change which occurred in the matchstick you used to lighting the candle or incense stick? Incense stick को जलाने के लिए you स्टिक को जलाने के लिए you used a matchstick. matchstick को जलाया, क्या वो रिवर्सिबल चेंज है? उसका जो आगे वाला पार्ट होता है, is it a reversible change, दिव्यज्योत? No, ma'am. We can't get it back. No, matchstick also we will not get it back as original. So both are not, यहाँ पे लिख दो not reversible change which occurred in a matchstick. जो matchstick में हुआ वो भी और जो incense stick में हुआ वो भी, both are not reversible. So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. What about the changes that occur? ये वाला बताओ, what about the changes that occur when we mixed substances together? अगर हम किसी substance को एक साथ mix करते हैं, like in our last lesson what we did, we took some water and we mixed salt in it. ये कौन सा वाला change है, reversible or irreversible? What kind of change it is? How? मैम, We can get it back sometimes because reversible and sometimes we can irreversible. get it back. Salt and water. By the process of Evaporation and condensation. Kriti, you're not telling any answer. Kriti. Evaporation. What will happen, like now we have seen many changes, हमने बहुत सारे changes देखे, dough से we made a chapati and one chapati that we baked, it is irreversible, that we fully rolled is reversible. Then we took that paper वाला example, that candle वाला example, incense stick example. In all these things we were doing some kind of like only substances solid things. If I am mixing two substances together, like we did in our last lesson, I mix salt and water. Is it a reversible change? Another kind of change is. अब अक्षय नहीं बोलिए, बाकी बच्चे बोलिए। By mixing substances together, अगर मैंने किसी substance के अंदर कुछ mix किया, इसमें now I am going to ask you one question. Others, please turn on your videos. मुझे वीडियो देखना है सबके. Only Akshaya is visible. अक्षया के अलावा किसी का भी वीडियो ऑन नहीं. हाँ, दिव्यज्योत and अक्षया. कृति, turn on your video. नैना, माला, अयान, निर्मल. Ayan, tell me. If I mix
two substances like एक बार layout change करके I want to see everyone. Okay, tell Ayan. Na namak ko I mix salt in water. Is it a reversible change? Yes, ma'am. Salt and water. Yes, ma'am. हाँ? No or yes? Yes. आवाज तक कम आ रहा है. सिर्फ जुबजोत और अक्षरा की आवाज कैसे आती है प्रॉपर? बाकी बच्चे ऑन भी नहीं करते वीडियो. नैना मालविया, टेल मी. Salt को I mixed with water. Is it a reversible change? No, ma'am. चली गई. Yes, इशिता ma'am. you tell. Yes. हाँ, अयान ने लिखा आंसर. Yes, it is a reversible change. Why? Explain करना होगा तो. Why is it a reversible change? Raj Singh. Because we can. Divjot tell. Evaporation. Because क्यों रिवर्सिबल है वो दिवजोत? Ma'am. दिवजोत बता. It is a reversible change because it is possible to get back water and salt. Now tell me, आवाज नहीं आ रही है दिवजोत. And by the process of evaporation. Very good. By the process of evaporation, it is possible to get back salt and water. That's why it is a reversible change. Now, if I Ma'am, mix sugar in condensation water, also. condensation and evaporation both. Kriti, tell me, if I mix sugar and water, what will happen if I want to separate sugar and water? Ma'am, Kriti, tell me. put in a refrigerator. Sugar and water. रेफ्रिजरेटर में तो बर्फ बन जाएगी, पूरा मीठा वाला बनाना, मीठी वाली बर्फ. मैम इसमें भी evaporation ही है क्या? इसमें भी evaporation है, लेकिन इसमें I saw one question. CBSE वाला ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि when I mix sugar in water and if I want to get back sugar and I heat it, what will happen to sugar? Sugar को क्या होगा? Sugar get dissolved. Ma'am, it got dissolved. If it is You evaporated, can't water get is it back. evaporated. It is I irreversible. will get sugar in brownish form, brownish सा powder मिलेगा. वो ब्राउन सा पाउडर फॉर्म में मिलेगा. एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लाइक आई टोल्ड यू आयोडीन वाला एक क्वेश्चन पूछा था ना, उसी टाइप का स्मॉल क्वेश्चन आता है कि शुगर को जब गर्म करते हैं और शुगर उसमें नीचे गिरता होता है तो ब्राउनिश सा पाउडर बनता है, ब्राउन कलर का पाउडर. इसमें एक एक्सपेरिमेंट भी है, दैट विल डू लेटर. Understood? So when two substances are mixed together, if it is possible to separate them and get them back, it is a reversible change. If it is not, it is irreversible change. Okay, now okay. Now can you see textbook? In chapter 4, we dissolve salt in water. Do you think the change occurs? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, we can see the book. Yes, ma'am. We can see the book. ये थोड़ा slow है ना, इसलिए close me here. Now, okay. Now see, we dissolve in chapter 4. We dissolve salt in water. Do you think a change occurred in salt and water? में कुछ changes हुआ था क्या? Is it possible to reverse the change? हाँ, Yes, तो यहाँ पे ma'am. लिखा Yes, ma'am. Reversible. it's a reversible change. Wait, in chapter 5, we learned how to separate salt from its solution in water. So we can say that the change due to dissolving salt in water is reversible change. Yes, ma'am. Now, similarly, they have given one more example. Paheli asked if you have ever seen curd being set. जो मम्मी कर्ड बनाती है, she takes some warm milk, थोड़ा सा गर्म milk लेती है, and then she puts some curd in it and she stirs it. उसको थोड़ा stir कर देती है. ये इसको कर्ड को underline कर दो, याद रहेगा ये वाला example. Curd and warm milk. Okay. The milk is stirred and is set aside for few hours at a warm place. थोड़ी गर्म जगह पर उसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए. In few hours, in say 6 or 8 hours में milk change हो जाता है curd में.
we find that few ways to bring about a change in substance. So is it a reversible change? No, ये ma'am, वाला we change can't get reversible. it back. No, ma'am. Milk. What kind of No, change it ma'am. is? No, ma'am. कौन सा मेथड है वो? किस चीज के कारण बनता है? उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं ना, उसके कारण बनता है। Ma'am, उसका churning? प्रोसेस जरा, हाँ, churn कहाँ करती है मम्मी? मम्मी takes warm milk, she puts some curd in it, she stirs it and keep it in a warm place. सुबह वो it changes into curd. Is it a Ma'am, reversible because change? of warm. Today you find out this one. Ask, find out the cat only one word just now. Okay, ma'am. Okay. Maybe changing milk, Naina, changing milk into curd. Is it a reversible change? क्या मैं वापस से will I get milk? No, ma'am. No, ma'am. No, reversible change because we will not Irreversible. when I used two things like Ma'am, chemical change it is. I use milk and curd. तो मैंने जो यहाँ पर यूज किया सब्सटेंस, these two substances Ma'am, we are can called make new substance. हाँ, जो हम यूज करते हैं बनाने के लिए उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो देयर। और जो फॉर्म होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ये लिख लो कहीं। Yes, ma'am. Product and reactant. Reactants and जो form होता है वो product. Sometimes the product that is formed is totally different. अगर वो एकदम अलग हो with different properties, then it is a chemical change. If the product formed is not different with different properties, it is a physical change. जैसे बर्फ वाला, ice and water वाला है, it is a physical change because the reactant and product जो है उसकी properties में कुछ भी change नहीं आया. But when I burned the paper, I took the reactant as heat, fire and paper and it converted into a product called ash जिसकी properties एकदम अलग है ना? So reactant and arrow डाल के Ma'am, product it ऐसा is लिख दो physical change or chemical change? Okay. Shall I run the board? Yes, ma'am. Yes. Now this is मैं आज तुमसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैम आप नोट्स सेंड करोगे क्या? हाँ सर बच्चों ने मैंने इसलिए सेंड नहीं किया क्योंकि बच्चों ने पुराना काम अभी तक सेंड नहीं किया मुझे। Ma'am, I have sent it Saturday. I have sent. I think only 6 children have sent me last chapters like notes. तो क्या प्रॉब्लम होगा एग्जाम में? तुम्हें एग्जाम में अपलोड करना नहीं आएगा पेपर और अब कोई सिखा कर नहीं देगा पहले की तरह, क्योंकि ऑलरेडी 5-6 सब टीचर्स ने भेजे हैं। मतलब तुमने अभी तक अपलोडिंग ही नहीं सीखा है ना, इसलिए प्लीज अपलोड करो काम। नाउ ऑन पेज नंबर 51 में एक एक्टिविटी दी है ना? सो इन दिस एक्टिविटी व्हाट यू ऑल हैव टू डू, पेज नंबर बहुत देर लगता है। सी ऐसा एक एक्टिविटी दिया है। In this activity what you all need is lemon juice invisible ink activity. Sometimes people they do magic करके दिखाते हैं but it is not a magic, है ना? Here now see what you all have to need for this is एक बाउल में थोड़ा सा लेमन जूस लेना है एंड ऐसे ईयरबड और ब्रश कुछ लेना है एंड अ पेपर. What you all have to do, see all these things you need for this experiment. Divjot, read it aloud on page number 51. They have given in the green box, they have given one activity. उसको जोर से पढ़ो. Take a lemon, a paintbrush, and a piece of paper. Cut the lemon and squeeze out its juice in a cup. Dip the brush in the lemon juice and write a message on the paper. Let the paper dry and you find that the letters of your message become invisible. Now press the paper with hot iron or warm it by holding it above the flame of a candle. Take care that it does not catch fire.
As the paper gets warm, invisible letter change into dark brown color. Identify the changes that can be reversed. This you all have to do at home. आज करके देखना है. जिसका बहुत अच्छे से होगा वो Yes, क्लास ma'am. में कर. Okay. What you all have to do, like she told just now, a lemon. लेमन को स्क्वीज करके एक बाउल में लेना है. हाँ. और ईयरबड या पेंट ब्रश लेकर यू राइट समथिंग विथ दैट लेमन जूस से इस तरह से. यू कैन सी दिस वन नो. ये वाला एक Yes, पिक्चर ma'am. दिख रहा है जिसमें मैंने एरोहेड दिखा है. वैसा कुछ ऐसा कुछ लिखना है उसके ऊपर. व्हेन यू राइट ऑन इट, आफ्टर राइटिंग ऑन इट, दिस कंप्यूटर इज सो स्लो. मैं किसी को पिन. हाँ. देन यू हैव टू हीट इट दिस वे. जब तुम ऐसे हीट करना है. और अगर आयरन वाला करोगे तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम. ऐसा व्हेन यू हीट इट, थोड़ा कैंडल के ऊपर रखकर उसको गर्म करना. व्हेन यू इनिशियली डू इट, Ishani again came Ma'am, I today have to another did account. experiment before. Now what you have to do, उस पर कुछ भी लिख देना सीक्रेट मैसेज. when you see तो तुम्हें वो मैसेज दिखाई नहीं देगा. उसको ड्राई होने देना पेपर को. आफ्टर सम टाइम जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसको कैंडल के ऊपर हीट करना है. जलने नहीं देना. कैंडल पे करेंगे तो उसी टाइम तुमको वो लेटर्स दिखेंगे. जो तुम लोग आयरन से करोगे, आयरन डायरेक्टली पेपर के ऊपर मत रखना. आयरन के ऊपर उसके पेपर पे कुछ रख के रखना. पर आयरन वाला करने से अच्छा कैंडल वाला करो. कैंडल लाइक आई शोड यू नाउ. कैंडल के ऊपर करोगे तो हीट के कारण दोज वर्ड्स दैट वाज इनविजिबल, जो नहीं दिख रहे थे, वो दिखने लगेंगे. एंड यू ऑल हैव टू फाइंड द रीजन फॉर दिस. इसका रीजन मुझे बताना. इसी क्लास में अभी थोड़ी देर पहले मैंने रीजन बताया था, है ना. तो जिन बच्चों ने, लेकिन Because इसका of रीजन नहीं बताया था. ब्राउनिश कलर का दिखेगा. दैट इज योर हिंट. जो तुम्हारे वर्ड्स होंगे दे विल लुक ब्राउनिश इन कलर. नाउ यू हैव टू डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम टुडे. मेक अ वीडियो ऑफ इट. ओके. एंड सेंड मी. मुझे वीडियो बना के सेंड करना एक्सप्लेनेशन के साथ. लेकिन उसमें यू हैव टू टेल रीजन आल्सो. रीजन भी बताना है व्हाई दे टर्न्ड ब्राउन इन कलर, है ना. पहले इनविजिबल क्यों थे. पहले इनविजिबल हो जाएंगे एंड देन दे आर सीन. व्हाई दे आर सीन, दैट यू ऑल हैव टू टेल मी. ओके. करके वीडियो भी बनाना एंड सेंड मी द वीडियो. ओके. मैम So this chapter is over. मैम इवेपोरेशन की वजह से. इवेपोरेशन तो पहले ही हो गया. इवेपोरेट होने के बाद तो वो दिख ही नहीं रहे थे. ड्राई हो गया तब नहीं दिख रहे थे. जब तुम उसको ड्राई करोगे तब भी नहीं दिखेंगे. जब हीट करोगे तब दिखेंगे. हीट करने में क्या क्या चीज यूज होती है. Ma'am, when we put it in the sun, it will. Ma'am, पहले पेपर पे words होते हैं क्या? एक्सोथर्मिक. When we burn something, what is needed? Which gas is needed? Ayan, when we burn something, which gas is needed? कौन सी गैस needed होती है burning के लिए? कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट किया था थर्ड स्टैंडर्ड में. कैंडल जला के उल्टा ग्लास रख देते हैं. जब तक उसके अंदर एक गैस होती है तब तक वो जलता है. बाद में वो एक्सटिंग्विश हो जाता है, बंद हो जाता है. किया था थर्ड में, थर्ड के ईवीएस में था ये कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट. और व्हिच गैस इज ऑक्सीजन. हां, तो व्हिच गैस इज बर्निंग. The candle under the किसी ने आंसर glass, किया. it will. It means oxygen is It will for this lightning Now you again. have to find and under the ice, find out invisible. Ma'am, we can't see the board. see the board. Can you see board now? No, ma'am. Can you see? No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. ma'am. Invisible के बाद क्या लिखा है? मैम इनविजिबल के बाद क्या लिखा है? I cannot move the. Wait, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ उसको. I cannot move this now. Invisible. Turned brown.
message. This experiment is given on page number 51. Okay. So tomorrow, today you are going to send me video, and one or two children are Okay, going to ma'am. explain it tomorrow. Okay. Now, the question answers are Ma'am? given in the textbook. They are very हाँ मैम एनसीईआरटी के जो फाइंड आउट क्वेश्चंस के बाद टेक्स्ट में क्या दिए लिखा है? हैं find out why the invisible message turned brown. Why the इतना बड़ा बड़ा तो लिखा है why the invisible message turned brown. This you have to find. So when you are making your video, जब तुम वीडियो बनाओगे एक कुनाल सुनाल ने क्या लिखा है उसका रीजन बताओगे एंड मैम एट द व्हाट एंड ऑफ योर वीडियो वीडियो के एंड में उसका रीजन ओके इसके लिए पहले तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा रीजन दिस होल एक्सपेरिमेंट इफ यू फाइंड आउट ऑन YouTube तो तुमको एक्सपेरिमेंट करने में भी कोई मिल जाएगा आई वांटेड टू शेयर दैट लेकिन ये हो नहीं रहा है इसमें ओके नाउ सी दिस यूनिट इज ओवर नाउ व्हाट दैट told you in last lesson जब भी यूनिट ओवर होती है तो फर्स्ट थिंग व्हाट ऑल वी हैव टू डू इज कीवर्ड्स दैट आर आल्सो वेरी सिंपल और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने देखे होंगे अभी तक तो दे आर आल्सो वेरी वेरी इजी एक ये पीओपी वाला क्वेश्चन 6th वाले में डाउट आएगा अदरवाइज और किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा ओके लाइक अयान टेल मी आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन रीड एंड टेल ये वाला कीवर्ड्स just read it once if you have doubt in any of them just ask me what are the factors that are needed for changes what are the factors that are needed for changes in around us देखो आता है just let me एक मैम हमें कीवर्ड सब लिखने बच्चे मुझे कुछ मत लिखो लास्ट लेसन में बच्चों ने लिखकर सेंड नहीं किया सबको सेंड करने दो उसके बाद what are the factors responsible for changes around us you will tell what are the factors responsible for बताओ what are the factors that are responsible for changes around us raise your hand किसको आता है अक्षया को आता है और What are the factors responsible for changes around us? हमारे आसपास जो changes होते हैं चीजों में उसके लिए कौन कौन से factors needed है आज ही तो डिस्कस किया हमारे आसपास जो चेंज हुआ मैंने अगरबत्ती जलाई मैंने प्रोसेस के नाम बताने हैं क्या? हाँ व्हाट आर द प्रोसेस वन वर्ड में बताना टेल वन एनीवन यू टेल मैम इवेपोरेशन हाँ तो इवेपोरेशन के लिए कौन सा वाला फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर क्या है वो इम्पोर्टेंट है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग हमारे आसपास जो चेंजेस हीटिंग नाउ आई एम गेटिंग दिस स्वेट मुझे पसीना आ रहा है तो रीजन क्या है वो चेंज का हीट है ना हीटिंग है ना नाउ आई टेल यू ऑल कि आज जिन्होंने काम नहीं सबमिट किया उन सब बच्चों को क्लास में एंटर नहीं होने देंगे नेक्स्ट टाइम से सो थोड़ा चेंज होगा ना तुम लोग थोड़े पैनिक होंगे कुछ बच्चे सब तो नहीं होते सो दैट इज प्रेशर लाइक कॉन्ट्रैक्शन हीटिंग प्रेशर और सॉल्ट वाला बताया था वो हाँ बताओ अक्षय मैम कॉन्ट्रैक्शन when we put iron some water हाँ तो कॉन्ट्रैक्शन it will contraction कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन क्या है मैम कॉन्ट्रैक्शन क्या है इट कम्स अंडर प्रेशर प्रेशर में आ गया ना वो मैंने प्रेस किया और मैंने खींचा तो प्रेशर में आ गया प्रेशर के अंदर और जो भी तुमने जलाया और एक बताओ मुझे
सॉल्ट एंड वाटर वाला कौन सा फैक्टर है? मेल्टिंग वाला तो अगेन कम्स अंडर हीटिंग, हीटिंग में ही आता है ना वो। प्रीति बताओ, पानी को मिक्स करने वाला कौन सा फैक्टर है? पानी में सॉल्ट मिक्स करने वाला मिक्सिंग। हम लोग को ना तो आता है लेकिन मेन वर्ड ही नहीं आते। Now if I ask you what are the factors responsible for changes around us, factors that are responsible for changes around us are heating, pressure and mixing two substances. heating के अंदर बहुत सारे आते हैं, pressure के अंदर भी बहुत सारे आते हैं जो हमने डिस्कस किए। mixing two substances ये याद रखो, फैक्टर्स लिख लो टेक्स्ट बुक में और हीटिंग, प्रेशर एंड मिक्सिंग ऊपर नहीं लिखो, याद रहेगा। Okay, this is one question for first one, first keyword. What are changes? मैम टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब हीटिंग में है ना, टेम्परेचर मींस हीटिंग, टेम्परेचर कम होना ज्यादा होना। मैम थर्ड वाला रिपीट करना। ये नोट कर लिया सबने? नोटेड? नो मैम, नो मैम। नाउ यस मैम। when you are learning now, write on your main word, factor लिख दो और ये तीन की heading लिख दो, तुम्हें याद रहेगा। Now if I ask you what do you mean by changes? What do you mean by changes around us? हमने लेसन पढ़ा, what is changes? Keyword, कौन बताएगा changes क्या होता है? हाँ दिजोटे, किसको आता है? रेज हैंड। What do you mean by changes? Changes मतलब क्या? First keyword changes दिया है ना Definition इन्होंने। for changes. No, anything you want to explain, वो explain कर दो. What do you mean by changes? What do you mean by changes? Changes बोला तो क्या होता है changes? मैम इस डेफिनेशन में ही चेंज आ रहा है। To become different. Change in the physical or chemical property. किसी भी substance की Present. थोड़ा माइक ठीक से रख के To बोलो, form a आवाज new नहीं आ रही। thing by old thing. Any kind of physical or chemical change in a substance that are different in our culture and nature. विहान वर्मा ये कहाँ से लिखी है ये वाली डेफिनेशन? आप किसी भी सब्सटेंस में फिजिकल या केमिकल चेंज को बोलते हैं चेंजेस। Then you will write the factors that are responsible for changes are heating, mixing, and third one was pressure. Mixing Okay, to what is contract? selection. अब अक्षया नहीं बोलेगी, जिसको पूछूंगी वही बोलेगा। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन? माला वर्मा और सत्यजीत। अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि बहुत बड़ा डिस्कस कर दिया। सेकंड कीवर्ड है रिटन कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड कीवर्ड इज कॉन्ट्रैक्शन। मैम क्या है रोल आंसर? नंबर Ma'am, can you repeat the question? Yes, you can make your own questions, you can make your own notes. 4 steps में बनाया तो 6 में तो बनाना ही है। अपने क्वेश्चन बनाया तो सबसे अच्छा है। कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन जिसको एक्सप्लेन। रोल नंबर 5 ने रेज हैंड किया था, उस रोल नंबर 5 मैम इसको लेके अक्षया। अक्षया नहीं बताएगी, अभी कोई और बताएगा। आहाना टेल, माला वर्मा कॉन्ट्रैक्शन। रोल नंबर 1 कौन है? 1 बताओ। मैम सारे ये वर्ड लिखती बोर्ड पे, ये भी लिखेंगे। फिनोमेना का मतलब होता है एक्टिविटी और इवेंट। ये वर्ड लिखिए व्हेन यू आर राइटिंग डेफिनेशन। इट इज अ फिनोमेना इन व्हिच, आगे बोलो अक्षय टेल। इट इज अ फिनोमेना इन व्हिच सब्सटेंस डिक्रीज इन साइज। कृति को बताना। यस, वेरी गुड कृति। ऐसी एक्सपेंशन का सेम है। इट इज अ फिनोमेना इन व्हिच
सब्सटेंस, ये वर्ड नोट कर लेना, सब्सटेंस श्रिंक हो जाता है ड्यू टू प्रेशर और इट्स साइज डिक्रीजेस, और इट्स साइज और इसमें कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शन में? विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल? जब प्रेशर बोलो किसको आता है? मैम आयरन प्रेशर प्रेशर अब ये डेफिनेशन का सेम इसी तरह से ऊपर टेल में डेफिनेशन, इट इज अ फिनोमेना इन व्हिच could you tell? Ma'am, it is a phenomena in which substance size increases. It is a phenomena in which, मैम हम डेफिनेशन में भी एक्सपेंड वर्ड यूज कर सकते हैं क्या? it is a phenomena in which substance expand or become larger, दोनों लिखेंगे, in size is called expansion and the factor that is responsible for expansion is pressure. Again pressure, इसमें भी pressure है ना। और कौन सा कीवर्ड है? एक ही बाकी है, melting. What is melting? melting क्या है? मैम सॉलिड टू लिक्विड, मैम सॉलिड Yes. और एक वर्ड बताना था मुझे, sublimation. सॉलिड टू लिक्विड Melting is a process in which solid, melting it is a phenomena or in which a solid substance melts into or turns into liquid. The process, the factor that is responsible for this change is heating. कौन सा responsible? हीटिंग मैम sublimation, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सीबीएसई के सारे मैम आपने जो 5th चैप्टर के जो नोट्स थे उसमें भी ये वर्ड यूज हुआ था। sublimation क्या यस होता है? मैम मैम Direct is something convert from solid to vapor. जैसे हमेशा क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर होता है ना, अगर सॉलिड से डायरेक्टली वेपर बन जाए तो इट इज सब्लिमेशन. दिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर. ये प्लीज लिख लो कहीं पर. मैम आई हैव रोट इट वेरी गुड. I'll ask you. So this lesson is almost over. Almost नहीं, ये over ही हो गया. If you want, we'll discuss question answers of this tomorrow. Otherwise, I'll start new lesson. No, we'll do revision of lesson number 1. Lesson 1 का revision करेंगे. ठीक है? लेसन नंबर 1 में तो कुछ भी नहीं है, लेसन 2 में ही है। तो 2 से करेंगे. Lesson 1 and 2 एक साथ कर देंगे. Lesson number 1 and 2 एक साथ कर देंगे. मैम ठीक है? ओके मैम। तो what all I have to do, थोड़े से keywords करके रखो. Second lesson is so big ना. कोई बात नहीं, इसके क्वेश्चन आंसर एक्स्ट्रा करेंगे. चैप्टर्स तो कर ही लिए। कर दिए फर्स्ट 2 lesson 1 and 2. Okay, we'll discuss some make questions. यस मैम लेकिन प्लीज बाकी के बच्चे भी आंसर दिया करो, फिर मुझे इंटरेस्ट नहीं आता टीचिंग में. लाइक फ्यू डेज बैक मैंने चिल्ड्रन आर आंसरिंग अच्छे से, तो पढ़ाने में भी मजा आता है ना, सामने से कुछ आता है. नाउ टीचिंग लाइक यहाँ पे चेयर्स है ना खाली, उनको पढ़ा रही है ऐसा लग रहा है, सिर्फ 2-3 बच्चे बोल रहे हैं. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. सुबह सुबह नींद आती है, थोड़ा जल्दी से उठा करो. 7 o'clock के आसपास उठकर थोड़ा बाहर जाओ, है ना, थोड़ा अपने आप को एनर्जेटिक करो. अयान अपने फोन्स को सेट करके रखो, पहले से थोड़ा सा रीडिंग करके रखो. अभी लेसन 1 और लेसन 2 का प्लीज आंसर सब बताना. नेहा, हाँ देखो रॉन्ग होगा, वी आर मैम कल टेस्ट लोगी क्या? रॉन्ग होगा. क्या टेस्ट मैम लेसन 1 का टेस्ट ले लो. कल लेसन 1 और लेसन 2 दोनों का टेस्ट लेंगे, उसके बाद एक टेस्ट की वर्कशीट भी भेज देंगे ताकि ओके तुम मैम. सॉल्व कर जाओ. ओके मैम. वो किस पे भेज होगी? ऑन मैम लेसन 1 और 2 का. ओके मैम. लेकिन टेस्ट में क्लास के डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं पर्सनल पे वो सेंड करूंगी सिर्फ उन बच्चों को जो क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं. समझ गए? आई विल टेल यू नेम्स. अगर मुझे यहाँ पे क्लास में डिस्कशन में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उनके व्हाट्सएप नंबर पे मैं सेंड कर दूंगी.
बाकी को अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करना है तो आई विल नॉट सेंड टू ऑल, क्लास में फिर सेंड नहीं करेंगे। आई सेंड टू ओनली चिल्ड्रन क्योंकि मुझे भी पढ़ाने के लिए सामने से रिस्पांस चाहिए ना। हाँ, मैं चैट नहीं देखती हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली तुम लोग का वीडियो देखना चाहती हूँ। बच्चे मुझसे छुपते क्यों हैं? मैं तो सबको देखती हूँ, तुम भी देखने चाहिए ना। आई एम चेकिंग इट, ये कंपोज फ्लो है। क्या आंसर? विधान मेवाड़ा, क्या आंसर लिखा है? मेल्टिंग इज अ फिनोमेनन सब्सटेंस दैट इन सॉलिड। अभी वेदांत ने लिखा है मेल्टिंग इज अ सब्सटेंस दैट इन अ सॉलिड थिंग बिकम लिक्विड। सो अभी देखो सेंटेंस फ्रेमिंग रॉन्ग है ना, इसे करेक्ट कौन करके देगा? लाइक वेदांत हैज रिटन मेल्टिंग इज अ substance that in a solid thing becomes liquid. Harshika, अभी आई है? Harshika, correct the sentence. What do you mean by melting? Vedant Nevada, it is not wrong, but it is not also correct. It is a phenomena. It is a process in which solid turns phenomena. liquid. Solid substance उसने सब्सटेंस लिख दिया। to the solid. मैम Substance लिख दिया और सब्सटेंस नहीं लिखना था, फिनोमेना लिखना था। हाँ, सब्सटेंस का मतलब होता है मटेरियल। ऐसा तुम लोग आंसर दोगे, रॉन्ग आंसर दिया तो बाकी बच्चे बताते हैं हमें याद रहता है ऐसे, है ना। और हंशल सिर्फ सॉलिड टू लिक्विड इतना सा नहीं लिखना है। आयान हैज रिटन एक्सपेंशन इज अ फिनोमेना इन व्हिच सब्सटेंस एक्सपैंड और चेंजेस इट्स शेप। अब चेंजेस इट्स शेप, कैसी शेप? बड़ी है छोटी? मैम इट इज अ एक्सपेंशन मींस फिनोमेना व्हिच चेंज सॉलिड टू वेपर्स। आप करेक्ट है। और जो चेंजेस शेप हमने लिखा है यहाँ, उसकी जगह लिखना था शेप बिकम्स लार्जर। ओके, डिक्रीजिंग साइज विहान ने लिखा है, रिड्यूसिंग इन साइज इज आल्सो करेक्ट। ड्रास्टिक चेंजेस और दैट कल्चर एंड नेचर वाला इज रॉन्ग विहान। एक्सोथर्मिक भी Okay, शॉर्ट that's all for today. Take care of yourself. Thank you and have a nice day. And please send me your work. Otherwise, personal पे काम दिया करेंगे जो बच्चे काम करते हैं उनको. Okay? Thank you. Thank you, ma'am, for teaching us. थैंक यू